ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10/10 ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ 22 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ 3 ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਸਰ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਜਾਏ जंगलों में जगह दे रखी है हमारे, और 2.5 लाख रुपए हमारी फीसें भरवा रहे हैं। आपको पहले भी कहा था कि आप सब इकट्ठे हो गए इन्फोर्समेंट वहां क्यों नहीं जाते? आप हमारे पास ला रहे हो कमिश्नर के पास लेके हमारी 2.5 लाख रुपए भरे हैं। मैं मार्केट का प्रधान हूं तो मैं मार्केट के लिए काम करूंगा ना। आपको दिक्कत है, आप कमिश्नर के पास क्यों नहीं जा रहे? आप सारे इकट्ठे होके उनको जाके बताओ। हमारे 2.5 लाख रुपए भरने के लिए ना, मेरे ये छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाए? 3 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे हम? बताओ, कमाएंगे तो भरेगा। 2-2 हजार का चलाना हो रहा, रोज माल उठा लेते हैं, कहाँ से भरेंगे हम? बताओ, 10% का ब्याज भरते हैं, जो कूड़ा चुगते हैं उनको अट्टे मिल गए और 1.5 लाख किराए पे दे रखे हैं। और हम लोग जो 20-20 साल हो गए, 25-25 साल वही यहाँ पड़े हैं, उनको जीने भी नहीं दे रहे हमें। क्या करें हम? बताओ, जिसका बूथ है उसको वेंडिंग जोन में क्यों अड्डा लाट किया? जिसका शोरूम है, जिसकी कोठी है, वो वेंडर है कोई? आप क्यों नहीं बोलते जाके? 4 गाड़ियाँ मेरे घर वाले को 49 रुपए में जंगल में वही तो कह रहा हूँ ना, आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? हम कमा के यहाँ बुढ़े हो गए। आप 3 लाख रुपए का चेक दे दिया, भरो। किस चीज के जंगल के भरे? बताओ, किससे भरो? 3 लाख रुपए का चेक दे दिया। सब लोग इकट्ठे होके
आप सब लोग इकट्ठे होके वहाँ पे जाके बताओ कि ये बंदे के बूथ हैं दो, इसको अड्डा क्यों दिया, इसकी कोठी है। अड्डा कैंसिल कर काम करने वो भी नहीं करने दे रहे हमें। हम भाग लेते हैं, दौड़ते हैं कारपोरेशन से, हम कमा के लगाते हैं इससे। अब ये भी नहीं मंजूर है, क्या वीडियो बनाने वहाँ जाके बताते हैं क्यों नहीं सच्चाई। मुकेश जी क्या कहानी है, क्या ये बातचीत है? सर ऐसा है कि जो मैं वेंडरों की बात करता हूँ, मेरा मेन जो मोटिव है बात करने का वो यही है। असली वेंडर ये हैं, जी ठीक है। जो असली वेंडर नहीं है उनको आपने प्राइम अड्डे दे रखे हैं, ठीक है। भी आप दे रखे हैं। आप लोग ये कॉर्पोरेशन की मिली भगत है, जिसके चंडीगढ़ के अंदर अपने बूथ है, अपना शोरूम है, अपने टैक्सी स्टैंड है, क्या वो वेंडर है? ये वेंडर है। इनको लॉट करो अड्डे। चला रहे। मेरी लड़ाई इनके लिए ही है कि मैं कॉर्पोरेशन को यही कहता हूं कि आप ऐसा काम मत करो। जिनके लिए एक्ट बना है, जिनको जरूरत है, उनको कारोबार दो। तुमने जो लोग पहली करोड़पति हैं उनको तुमने अड्डे दे रखे हैं। इसलिए ये शुरू से ही, जब से टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है और इनका सर्वे हुआ है, इन्होंने वो एक कहावत है ना, अन्ना बंडे रेबड़िया मुड़ा अपने बिनु दे। तो जिनके पहले ऑलरेडी करोड़पति हैं उनको अड्डे अलॉट कर रखे हैं, जो वेंडर है वो भूखे मर रहे हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल होना है, वो किन पे लागू होता है? सर वो लागू तो फिलहाल सारे वेंडरों पे है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर पास कर दिया उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग वेंडर नहीं हैं उनको छांटी करके बाहर निकाला जाए, और जो ये गरीब भाई हैं जो एक्चुअल में वेंडर हैं उनको जगह दी जाए। जो ये कहा जा रहा है भी ये अपने वेंडिंग जोन से बाहर आके यहाँ माल लगाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? सर वही बता रहा हूँ, वेंडिंग जोन से बाहर आने का कारण यही है, एक तो प्रॉपरली वेंडिंग जोन के अंदर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक्ट कहता है, एक्ट के हिसाब से आप वेंडिंग जोन बनाओ, प्रॉपर इनको सारी फैसिलिटीज दो, तो ये वहां पे भी काम करेंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है कि ये 15 साल से, ये 20 साल से कह रहे हैं हम माल लगा रहे हैं यहाँ, तो इनके अड्डे 22 में थे, इनको तो फेंक दिया दूसरी जगह। जिनके शोरूम थे, जिन्होंने कभी अड्डा लगाया ही नहीं, उनको 22 सेक्टर में अड्डे अलॉट कर दिए। तो वो क्या करेंगे? और वो मजे की बात यह है कि वो काम नहीं कर रहे, वो किराया खा रहे हैं। क्या किराया सर? क्या किराया यहाँ? सर 1.25 लाख से स्टार्ट है और 2-2.5 लाख रुपए तक पर महीने का किराया है। रेडी फड़ी का? हाँ जी। तो ये सही रो रहे हैं। नहीं, ये बूथ और शोरूम का किराया नहीं मैं पूछ रहा, रेडी फड़ी का। रेडी फड़ी का बता रहा हूँ। और 22 सेक्टर में 107 में से 40 अड्डे ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो उनको क्यों अड्डे अलॉट किए हैं? जो करोड़पति हैं वो रेडी फड़ी लगा रहे हैं। हाँ, और सुनो, इनकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है जी। इनका जो अपना प्रधान है टाउन वेंडिंग कमेटी का, टिम्मा, ठीक है, उसको अड्डा अलॉट हुआ 48 में, उसने तो दबाव डाल के 22 में अड्डा अलॉट करा लिया। इनको क्यों नहीं करा के देता? किस चीज का प्रधान है वो? अपने अपने जो का प्रधान है। ये सारे, एक प्रधान 15 सेक्टर का है, वो वहाँ अड्डा लगाता था, उसने यहाँ स्टे ले लिया अपनी, तो इनको क्यों नहीं दिलाता भाई? इनको क्यों नहीं दिलाता? ये सारी धांधली है, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं, जिसकी लाठी है, उसकी भैंस है। ये गरीब पहले भी पिसते आए हैं, आगे भी पिसते रहेंगे। अब एफिडेविट फाइल करना है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एफिडेविट फाइल करना है भी ऐसी इंक्रोचमेंट जड़ी है टोटली खत्म करती। फिर मैंने ये दसो भी ये एफिडेविट कितना फाइल होएगा? सर ये तो अब इनको प्रॉपरली इनको मैं बताती हूँ, जो टिम्मे के बंदे हैं ना, जो सारे आ चुके हैं यहाँ पे, जो उसके आदमी थे, उनकी कमेटी के थे या उसके लगने वाले थे, यार दोस्त, उन सबको टिम्मे के तो सबों को मिल गई सटे, और हमने दे रखा 2.5 लाख रुपए उसको सटे लेने के लिए 10% पे। और हमें हमारा कुछ नहीं बना, और हमें और तक के 4 इंस्पेक्टर बुला के और हमारा माल उठवा देते हैं, उंगलीबाजी करके इनका उठा ले जाओ माल। ये इलीगल है, हम इलीगल है और ये बाकी इलीगल है। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन पुत्ती रह गया। सर ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो कमिश्नर साहब को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बट एक्शन में तो ये आते हैं सर, वही तो लड़ाई किस चीज की है कि आप इसको पूरे सिस्टम को जीरो से ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लड़ाई ऐसी चलेगी, ठीक है। मैं भी इनके खिलाफ बोलूंगा,
मैं मार्केट का प्रधान हूँ, अगर मेरी मार्केट का रास्ता रुकेगा तो मैं तो बोलूंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम की जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे, इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होना। तो सलूशन कैसे है, जड़ से मतलब सलूशन कैसे होगा? सर इनको स्कूटनी करनी पड़ेगी, जितने भी वेंडर्स हैं उन सबकी स्कूटनी करो, उनके अपने ITR चेक करो, उनकी बैंक स्टेटमेंटें चेक करो, आपको पता लग जाएगा भी कौन करोड़पति है और कौन गरीब है। पूछ लो भाई एक बहुत ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। यही स्थिति विच तां ही कोई सलूशन निकल सकता है जदि इस मामले की शुरू तो जांच होवे और जेड़े दोषी है उन्हां ते कार्रवाई होवे, जेड़े बेकसूर है उन्हां नूं उन्हां दा बनदा हक दिता जावे। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, थैंक्स फॉर टीवी, चंडीगढ़ तो।